Okay, class. So we will be today discussing recoil of a gun, and this is a observation that we already know that when bullet is fired in the forward direction, the gun gets a backward jerk. It recoils in the backward direction. So that is due to Newton's third law of motion, or you can also justify it using conservation of momentum. Okay, so we will be deriving the velocity with which the gun recoils backward using the conservation of momentum. Okay, so recoil of a gun is what we are discussing, and using conservation of momentum, according to conservation of momentum, that means the mathematical form I am talking about. What is the mathematical form of conservation of momentum? We have derived the expression. It says that total initial momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to the total final momentum m1 m1 v1 and plus m2 v2. Okay, so this is the total initial momentum and this is the total final momentum. इस सिस्टम में अभी हम किन दो चीजों की बात कर रहे हैं, गन एंड बुलेट. Okay, so the terminology that we are following here is that m1 m2, these are the masses of gun and bullet. Okay, and u1 u2 are the initial velocities of gun and bullet. Okay, and v1 v2 are the final velocities of gun and bullet. So these are the terminologies, symbols जो हम use कर रहे हैं. m1 m2, m1 mass of the gun है, m2 mass of the bullet है, u1 mass of initial velocity of the gun है, u2 initial velocity of the bullet है, v1 final velocity of the gun है, v2 final velocity of the bullet है. Okay, now since initially gun and bullet both are at rest, initially gun and bullet both are at rest. Initially जब फायर नहीं कर रहा है बुलेट को तो गन एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट. सो u1 u2 दोनों इक्वल टू 0 है. ठीक है, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे. नाउ व्हेन वी यूज इट इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, नाउ एनीथिंग इनटू 0 इज 0 ओनली. तो आप देख रहे हैं LHS कंप्लीटली 0 ही हो गया. टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0. दो टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं, दोनों 0 है. टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0. इसका मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा, और ये बात हम यूज करके फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन निकाल लेंगे. सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल टू 0. ओके, ये m1 क्या है, मास ऑफ द गन. v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर द बुलेट हैज बीन फायर्ड. v1 इज द वेलोसिटी जो हम ढूंढ रहे हैं, जिससे गन को पीछे को धक्का लगा है. जो गन पीछे थोड़ा सा जाती है जब हम फायर करते हैं, वो किस वेलोसिटी से रिकॉइल करती है, वो है v1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ओके, एंड m2 इज द मास ऑफ द बुलेट, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जिससे बुलेट फायर करी है. 150 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, वो जो वेलोसिटी है वो ये होगी बुलेट की वेलोसिटी. ओके, वी आर लुकिंग फॉर द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन. तो हम v1 वाली टर्म को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. इट बिकम्स m1 v1 इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ आप इक्वल टू किस साइड लाए हो उसको, इज इक्वल टू m2 v2. ओके, एंड v1 will be equal to, हम m1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, it will go in the denominator, negative will also go on the other side, so it becomes v1 is equal to minus m2 v2 divided by m1. This is the formula for the velocity with which the gun recoils. It is known as the velocity of recoil या फिर recoil velocity of the gun. You see a negative sign here which shows that the gun moves in the opposite direction as compared to the bullet. अगर bullet forward direction में जा रही है, gun पीछे की तरफ धक्का लगता है gun को, gun recoils in the backward direction. Okay, so the recoil velocity of the gun is minus m2 v2 upon m1. m2 mass of the bullet, v2 velocity of the bullet, m1 in the denominator is the mass of the gun. Okay class, so now example 9.6 on page 124, it says that
अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स। सो हम जो नोटेशन फॉलो करेंगे वो एक ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। M1 को हम गन मान रहे हैं और M2 को हम बुलेट मान रहे हैं, ठीक है। तो M2 अभी डेरिवेशन में भी हमने ऐसे ही किया था। तो अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बुलेट का मास गिवन है 20 ग्राम, is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट कितनी वेलोसिटी से चली है उसको हम v2 लेते हैं हमेशा, हाँ, which is 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, पिस्टल जिससे उसको फायर किया है उसका मास गिवन है 2 kg। ओके, यू हैव टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। आपको v1 कैलकुलेट करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। रिकॉइल वेलोसिटी का आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको बाई चांस रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है एग्जाम टाइम में, आप सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन में वैल्यूज डाल दोगे, आंसर वही आएगा। यही ऐसी ही दिखेगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। जब आप वैल्यूज डालोगे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियली बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है, और राइट हैंड साइड में आप ये वैल्यूज डालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। So v1 we are calculating as minus mass of the bullet, velocity of the bullet upon mass of the gun, ठीक है। डालेंगे वैल्यूज इसमें। m2 कितना गिवन है 20 ग्राम्स। हाउ मच इज दिस इन kg? You divide it by 1000, okay, so that will become 0.02 kg, ठीक है। kg में कन्वर्ट किया हमने, it becomes 0.02 kg and putting the values now, minus 0.02 into 150, that is the velocity of the bullet, divided by mass of the gun, that is 2. Okay, now you have to solve this fraction for the recoil velocity of the gun. We have straight away used the formula for the recoil velocity of the gun, put the values, and now we calculate. So when we simplify this further, okay, we cancel it out by 2 and what do we get? It becomes minus 1.5 meter per second. So this is the velocity with which the gun recoils in the opposite direction. Negative sign is indicating that the gun is moving in the opposite direction. Opposite to what? Opposite to that of bullet. So this is the question number 3, page 126. It says rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 grams, and it is fired with a velocity of 35 meter per second. You have to find the recoil velocity of the gun. Okay, the formula for recoil velocity is mass of the bullet, velocity of the bullet divided by mass of the gun, negative sign indicating recoiling, moving in the opposite direction of the bullet, and put the values and calculate the recoil velocity of the gun. Sign is important. Okay, so putting the values in the formula, mass we are putting in kgs 0.05, velocity of the bullet 35, mass of the gun is 4. Okay, and simplifying this further, we get the final answer as negative 0.43 meter per second. Okay, so this is the recoil velocity of the gun. Don't forget the negative sign. Units are important. You lose half mark otherwise if you miss any of these two. Okay, also your final answer will give you an indication कि तुम्हारी calculation ठीक है कि नहीं। ये बहुत huge number कभी नहीं आएगा, ठीक है। गन की वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच द गन इज गेटिंग अ बैकवर्ड जर्क। अगर वो बहुत ह्यूज नंबर होगा तो गन फायर करने वाला को तो बहुत इम्पैक्ट होगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये नंबर बहुत डबल डिजिट्स में आए, या सिंगल डिजिट में भी बहुत बड़ा नंबर नहीं हो सकता ये। ओके, ये डेसिमल्स में 1 2 3 इनकी रेंज में ही होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द फाइनल। सो डिराइव न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। जैसे हमने फर्स्ट लॉ डिराइव किया था सेकेंड लॉ से, हम थर्ड लॉ भी यूज करेंगे, डिराइव करके दिखाएंगे फ्रॉम सेकेंड लॉ। सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो द स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब हम उसके मैथमेटिकल फॉर्म को यहाँ स्टेट करने वाले हैं। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, then what we are going to do is हम m1 वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और m2 मास, सेकेंड मास की सारी टर्म्स दूसरी तरफ कर रहे हैं। ओके, तो ये बन गया m1 u1
m1 v1 यहाँ आएगा, मैंने कहा m1 की हम सारी टर्म्स एक तरफ कर रहे हैं, ये बना m1 v1 इस तरफ विद नेगेटिव इज इक्वल टू m2 v2 ऑलरेडी यहाँ था और m2 u2 हम उस तरफ ले गए तो वो हो गया नेगेटिव। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, m1 u1 ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लिखा और फिर यहाँ पे हमने m1 की सारी टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर ली LHS में और m2 की टर्म्स RHS में कलेक्ट कर ली। ओके, नाउ टेकिंग मासेस कॉमन, ये बन गया u1 माइनस v1 और यहाँ पे m2 बाहर निकालेंगे कॉमन तो बनेगा v2 माइनस u2। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है? वी वांट टू रीच द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होता है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। रिमेंबर, हमारा टारगेट ये है, हमें ऐसा इक्वेशन लानी है। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। दिस इज आवर टारगेट विच नीड्स टू बी अचीव्ड। तो मतलब हमें इन इक्वेशन को फोर्सेस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटीज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको फोर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें टाइम से डिवाइड करना होगा। जब हम थ्रू आउट टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म्स आप देख रहे हो एक्सेलरेशन बन जाएंगी जो ब्रैकेट्स में, और मास इनटू एक्सेलरेशन हमें फोर्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ तक जाना है, इसलिए हम थ्रू आउट दिस इक्वेशन वील डिवाइड बाय टी। ओके, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय टी, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स m1 u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अनडिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये बन गई एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। व्हाट अबाउट दिस? ये तो इनिशियल माइनस फाइनल हो रखा है यहाँ पे, तो हम नेगेटिव को करेंगे बाहर। वील टेक आउट द नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड ताकि हम इसको फोर्स की फॉर्म में लिख पाए। यहाँ तक द स्टेप्स आर क्लियर? प्लीज लुक एट द स्टेप्स वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो इफ something is not clear. Stuti, you have raised your hand. Okay, class, we have taken negative common from this left hand side ताकि ये फोर्स की फॉर्म बन जाए, और ये फोर्स का फॉर्म कब लेगी? जब ये ब्रैकेट वाली चीज एक्सेलरेशन बनेगी। एक्सेलरेशन के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी पहले चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम, तो नेगेटिव लिया बाहर कॉमन ताकि ये v1 माइनस u1 के फॉर्म में आ जाए। ओके, सो नाउ दिस इज माइनस m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ m1। ठीक है, ये क्या हो गया? माइनस m1 इंटू a1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? m2 a2। दिस इज व्हाट? फोर्स ऑन 1। और किसकी वजह से लगेगी ये फोर्स? जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली बात कर रहे होते हैं, हम कोलिजन की बात कर रहे हैं ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये कांटेक्ट फोर्स है। ओके, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2, फोर्स 2 पे कौन लगा रहा है? 1। सो वी हैव रीच्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ। और यहाँ सेकंड लॉ कहाँ यूज किया हमने? ये सारी कहानी सेकंड लॉ को लाने के लिए तो डाली है, टी से डिवाइड किया, माइनस को बाहर लिया। सो सेकंड लॉ ने कहा था कि ये वाली टर्म को आप फोर्स कह सकते हो, इसलिए हम इस डेरिवेशन को बोलते हैं कि हम थर्ड लॉ तक पहुंचे हैं यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो यहाँ पे यू विल बी राइटिंग दैट यूजिंग, जहां आपने एम वी माइनस यू बाय टी को एफ लिखा है, एम इंटू ए लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेकेंड लॉ। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू and opposite to force on 2 due to 1. This is the Newton's third law. So we have derived the Newton's third law using conservation of momentum from Newton's second law. Yes, this is the reason why the second law of motion is known as the real law of motion, because it contains the first law also and the third law also. आप सेकेंड लॉ को यूज करके फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर चुके हैं हम, और थर्ड लॉ भी प्रूव कर दिया है।